A very good morning to my lovely students. Once again, I am here with another video which is very informative and knowledgeable. So, basically, we are doing chapter 3, the biological basis of behavior, in which we had studied about the biological and the cultural roots, the evolutionary perspective, and the peripheral nervous system. The nervous system, the classification of nervous system, that is the PNS and the CNS, and we had completed the PNS, in which we had studied about the somatic nervous system and the autonomic nervous system. The somatic nervous system, which is doing the voluntary actions, voluntary influences, in which the cranial nerves and the spinal nerves, and the autonomic nervous system, in which two division in the autonomic nervous system, which are the somatic and the parasympathetic, sympathetic and the parasympathetic nervous system. Okay, so this is all about the previous videos. Now today we will start the central nervous system, the CNS. The basic two parts of CNS is the brain and the spinal cord. The central nervous system is the center of all neural activity. That's why this is called the central nervous system, and it integrates all incoming sensory informations, perform all kinds of cognitive activities, and issues motor commands to muscles and glands. The CNS comprise of the two basic structure, the brain and the spinal cord. You will now read about the functions of the major parts of the brain and for what behavior is each parts are responsible. That's mean the structure of brain and the function of brain. The brain and behavior. It is believed that the human brain has evolved over millions of years from the brains of lower animals, and this evolutionary processes still continues. We can examine the levels of structure in the brain from its earliest to the most recent form in the process of evolution. The limbic system, brainstem, and cerebellum are the oldest structure of the brain, while cerebral cortex is the latest development in the course of evolution. That means through the process of evolution, our structure is changed, or you can say modified. The limbic system, brainstem, and the cerebellum is the part which are very common in animals also, and this is a very old structure of our brain. And the cerebrum, the cerebrum is basically the developed part, the newest part of the brain and human beings. The evolutionary process के through हमारा cerebrum का जो structure है वो काफ़ी change हुआ है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. दैट्स वाई जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे ब्रेन की, जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स, इन कंपैरिजन टू आवर एंसेस्टर्स ऑल्सो. ओके, an adult brain weighs about 1.36 kg and contains around 100 billion न्यूरॉन. एक हेल्दी अडल्ट पर्सन का जो ब्रेन का वेट होता है इट्स अराउंड 1.36 kg एंड 100 बिलियंस न्यूरॉन्स एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के रीजन में पाए जाते हैं. हाउएवर द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट द ब्रेन इज नॉट इट्स नंबर ऑफ न्यूरॉन बट इट्स एबिलिटी टू गाइड ह्यूमन बिहेवियर एंड थॉट्स. दैट्स मीन नॉट द क्वांटिटी but the special qualities, the functions which are very specialized, which are very much fast and very much complicated. Okay, so these are function is very much important for our brain. That means the ability to guide human behavior and thought. The brain is organized into structure and regions that perform specific functions. Brain scanning reveals that while some mental functioning are disturbed among different areas of the brain, many activities are localized also. For example, the occipital lobe of the brain is a specialized area for vision. That means some techniques, for example brain scanning, इसके सिवा भी बहुत सारी और टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम लिविंग ब्रेन की स्टडी कर सकते हैं. नॉट ओनली लिविंग ब्रेन, मतलब ये तो रीसेंट स्टडीज़ है, रीसेंट रिसर्च है जिसके थ्रू हम लिविंग ब्रेन की स्टडी कर पा रहे हैं. बट इन एंशियंट टाइम
जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, दैट्स टाइम पे जब इंडिविजुअल की डेथ हो जाती थी, उस टाइम में हम ब्रेन डिसेक्शन करते थे, उस टाइम पे उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते थे. बट इन रिसेंट ईयर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, हम लिविंग ब्रेन की स्टडीज़ कर सकते हैं. बहुत सारे मेथड आपने सुने होंगे, फॉर एग्जांपल MRI, CT स्कैन. तो ये सारी वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम ब्रेन की फंक्शनिंग को, जिस नोन एज द ब्रेन स्कैनिंग, जहाँ हम लिविंग ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग को नोटिस कर सकते हैं. Okay, now come to the structure of the brain. For the convenience of study, the brain can be divided into three parts: the hindbrain, the back portion से start करते हैं, the hindbrain, the midbrain and the forebrain. Forebrain, which is the frontal part of the brain. Okay, so first of all, hindbrain. This part of the brain consists of the following structure. Basically the hindbrain के जो तीन important structure होते हैं, which are medulla oblongata and pons and cerebellum. The three structure which is very important for hindbrain, the back portion of the brain, the hindbrain, that means medulla, pons and the cerebellum. The part of the brain consists of the following structure. First one is medulla oblongata. So it is the lowest part of the brain that exists in continuation of the spinal cord. बेसिकली हमारी जब स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जब ख़त्म हो रही है, यहाँ से जो एरिया स्टार्ट हो रहा है, जो पार्ट है ब्रेन का, दिस इज़ नोन एज मेड्यूला. जो हमारा बैकबोन आगे जाके एक्सटेंड हो रहा है और हमारे ब्रेन से टच कर रहा है, ब्रेन से रिलेशंस बना रहा है, वहाँ पे जो पार्ट है, दिस इज नोन एज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली, एंड इट कंटेन्स न्यूरल सेंटर्स which regulate basic life supporting activity like breathing, heart rate, blood pressure, etc. ठीक है, दैट्स मीन जो लाइफ सपोर्ट एक्टिविटी होती है, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, वो सारा हमारा मेड्यूला रेगुलेट करता है. मेड्यूला में जो न्यूरल सेंटर्स होते हैं वो इसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, और विद दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ द होल पार्ट ऑफ द ब्रेन ये सारे ऑटोमेटिक प्रोसेसेस यहाँ से कंट्रोल होते हैं. And this is why the medulla is known as the vital center of the brain, because the most of the neural connections are here. So it has some center of autonomic activities also. Autonomic nervous system के बहुत सारे centers यहाँ से connected हैं medulla से. That's why ये जो autonomic activities होती हैं, हमारे internally जितने भी organs हैं उनकी proper functioning, हमारी लीविंग से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर है, ये जितनी भी इंटरनल होम्योस्टैसिस वाली चीज़ें हैं, इंटरनल ऑर्गन्स का मैनेजमेंट है, ये बेसिकली मेड्यूला सपोर्ट करता है. मेड्यूला रेगुलेट करता है इन सारे फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज द पॉन्स. इट इज़ कनेक्टेड विथ मेड्यूला ऑन वन साइड एंड विद द मिड ब्रेन ऑन द अदर साइड. This is the mediate part of the medulla and the midbrain. Midbrain और medulla के बीच का जो part है, बहुत छोटा सा, बहुत small सा, this is known as pons. A nucleus, that's the neural center of pons, receive auditory signals relayed by our ears. ठीक है, यहाँ पे जो neural centers हैं ये basically auditory signals को जो ear से relay होते हैं उसको receive करते हैं. And it is believed that pons is involved in sleep mechanism, particularly the sleep characterized by dreaming, and it contains nuclei affecting respiratory movement and facial expressions also. So basic three functions of pons is the regulation of respiration movement, that means respiratory movements को ये रेगुलेट करता है. फेशियल एक्सप्रेशन में जो भी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जो भी न्यूरल पाथवे इन्वॉल्व होता है, उसे कंट्रोल करता है, उसे रेगुलेट करता है. And the third important part is the sleep characterized by the dreaming. जो ड्रीमिंग पार्ट की स्लिप है, दैट्स मीन रैम स्लिप जो हमारी है. स्लिप इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द रैम स्लिप एंड नॉन रैम स्लिप. तो जो रैम स्लिप होती है विच इज़ कैरेक्टराइज बाय ड्रीमिंग, जिस स्लिप के एज में हमें जिस स्लिप के स्टेट में बेसिकली हमें ड्रीम्स आते हैं, वो जो स्लिप होती है वो कैरेक्टराइज वो कंट्रोल होती है हमारे पॉन्स से. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज द सेरिबेलम, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द स्मॉल ब्रेन, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्रेन. जिस तरह से ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है, सेरिबेलम भी जस्ट लाइक अ स्मॉल ब्रेन. दिस हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइज बाय इट्स रिंकल्ड सरफेस. ठीक है, रिंकल सरफेस जैसे कि फोल्डेड
और रिंकल सरफेस हमारे फोरब्रेन में होते हैं, हमारे सेरिब्रम में होते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं हमारे सेरिबेलम का भी. एंड इट मेंटेन्स एंड कंट्रोल पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. हमारे गेस्चर पोस्चर्स को कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है, और हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को भी ये कंट्रोल करता है. दैट्स मीन मूवमेंट पार्ट. जब हम स्टैंड होते हैं तो हमें जो डायरेक्शन का और स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन का जो अवेयरनेस होता है वो हमारा ये सेरिबेलम रेगुलेट करता है. बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. इट्स मेन फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स. ठीक है, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो मस्कुलर मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना होता है. दो द मोटर कमांड्स ओरिजिनेट इन द फोर ब्रेन, द सेरिबेलम रिसीव एंड कोऑर्डिनेट देम टू रिले टू द मसल्स. जो भी हमारे फोर ब्रेन से कमांड रिलीज़ होती है, मोटर कमांड रिलीज़ होती है, वो बेसिकली यहीं पे जाती है. सेरिबेलम उसे रिसीव करता है और यहीं से आगे मसल्स को सेंड कर देता है. It also stored the memory of movement patterns so that we do not have to concentrate on how to walk, dance or ride a bicycle. ये पैटर्न्स को एज इट इज़ स्टोर करके रखता है. ठीक है, जिस तरह के मूवमेंट और पैटर्न्स इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. फॉर एग्जांपल वॉकिंग का क्या पोजीशन है, सिटिंग का क्या पोजीशन है, बाईसाइकिल किस तरह से राइड करती है, जो हमारा मोटर लर्निंग होता है वो यहाँ पे स्टोर्ड होता है. पैटर्न फॉर्म में ये मेमोरीज को स्टोर रखता है. नाउ द मिड ब्रेन विच इज़ वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. दैट मीन सबसे बड़ा हमारा फोर ब्रेन है, उसके बाद सबसे छोटा हमारा मिड ब्रेन है, और उससे बड़ा हमारा हाइंड ब्रेन है. दिस इज द मीडिएटर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन. ठीक है, मिड ब्रेन जो है वो एक मीडिएटर पार्ट है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. The midbrain is relatively small in size and it connect the hindbrain with the forebrain. ठीक है, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है. A few neural center related to some spatial reflexes and visual and auditory sensations are found here. ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यूरल सेंटर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, किससे, स्पेशियल रिफ्लेक्सेस से एंड विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेशन से. So an important part of midbrain known as RAS, reticular activating system, which is also known as reticular formative system. ठीक है, it is responsible for our arousal and it makes us alter and active by regulating sensory inputs. It also helps us in selecting information from the environment. ठीक है, क्योंकि यहाँ से बेसिकली अराउजल और अटेंशन कोऑर्डिनेट होता है. ये पार्ट यहाँ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है, आरएएस सिस्टम, ये हमारे स्लिप के पैटर्न को रेगुलेट करता है. ठीक है, हमको कब सोना है, कब जाना है, अराउजल, और जो हम नाइट के टाइम पे डल फील करने लगते हैं, हमें स्लिप आने लगती है, ये सारी चीज़ें ये रेगुलेट करता है. अराउजल, अटेंशन, दैट्स वाई यहाँ से सिलेक्शन का भी प्रोसेस होता है, क्योंकि जब हमारा अटेंशन का प्रोसेस चलता है तो हम इन्वायरमेंट में से कुछ सर्टन स्टिमुलस को ही सेलेक्ट करते हैं. तो सिलेक्शन भी यहाँ होते हैं, सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी एनवायरमेंट, यहाँ से ये भी रोल प्ले होता है, ये कंट्रोल करता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिड ब्रेन. बहुत छोटा पार्ट है, इसमें एक ही पार्ट है विच इज़ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि मेनली इज रिस्पॉन्सिबल होता है अराउजल एंड अटेंशन के लिए. नाउ कम टू द फोर ब्रेन. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकॉज it perform all cognitive, emotional and motor activities. We will discuss four major part of the forebrain. ठीक है, ये बहुत important है. That's why the part of forebrain के जो parts हैं, इनके specialized function की वजह से ही आज हम एनिमल से और बाकी जितनी भी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं उनमें सबसे एडवांस और सबसे अच्छा ब्रेन हमारा है ड्यू टू फोर ब्रेन. क्योंकि फोर ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ये हमारे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, सेंसरी, मोटर्स एंड इमोशनल और कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए रोल प्ले करते हैं. ये सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल और रेगुलेट होती हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यूली डेवलप पार्ट है ये हमारे ब्रेन का. सो वी विल डिस्कस फोर मेजर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन विच आर hypothalamus, thalamus, limbic system and cerebrum. These are the four important part of the forebrain. So first of all, hypothalamus. I want to mention here that hypothalamus is very important for psychological point of view. All the psychological functioning are basically related to the hypothalamus. For example, the emotions, the motives, the needs. ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग जो है हमारी स्कीमास, थॉट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहीं से रेगुलेट होती हैं, कंट्रोल होती हैं.
The hypothalamus is one of the smallest structure in the brain but play a vital role in our behavior. ये सबसे smallest structure होता है. आपने अगर चना या मटर का दाना देखा हो तो मतलब बिल्कुल उसी साइज़ का होता है. जैसे जितना बड़ा एक मटर का दाना एक चना है उतना ही बड़ा होता है हमारा हाइपोथैलेमस. बहुत स्मॉल पार्ट है, एकदम ओवल शेप में और बहुत छोटा सा पार्ट होता है. और बट ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर में. इट रेगुलेट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन इमोशनल एंड मोटिवेशनल बिहेवियर. हमारे इमोशनल और मोटिवेशनल बिहेवियर में जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है. सच एज ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड सेक्शुअल अराउजल. ठीक है, ये सारे फंक्शनिंग हमारा हाइपोथैलेमस रोल प्ले करता है. एंड इट ऑल्सो रेगुलेट एंड कंट्रोल द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है हमारी बॉडी का, लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, एंड रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स. वो इन सारी चीज़ों को ये रेगुलेट करता है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से ये एंडोक्राइन सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ कंबाइंड होके ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की सप्लाई को देखता है, उन सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है. एट द सेम टाइम ये मोटिवेशन और इमोशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट्स वाई आई सेड दैट कि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. नाउ आवर सेकंड पार्ट इज थैलेमस. द फोरब्रेन का जो सेकंड पार्ट है दिस इज थैलेमस. इट कंसिस्ट ऑफ एन एग शेप क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल अपर साइड ऑफ द हाइपोथैलेमस. ठीक है, वेंट्रल अपर देयर इज़ अ टू टाइप. ठीक है, हम यहाँ पे वेंट्रल और एक इसका अपोजिट होता है, और ऐसे हम ब्रेन को स्टडी करते हैं तो उसके बेसिस पे ये है वेंट्रल और सेंट्रल, ऐसे पार्ट को हम डिनोट करते हैं. सो जो हाइपोथैलेमस से वेंट्रल पार्ट है दिस इज नोन एज थैलेमस. हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है. इट इज़ अ ओवल एग शेप लाइक स्ट्रक्चर, एक शेप का होता है, और ये हाइपोथैलेमस से भी छोटा होता है थैलेमस. It is like a relay station that receive all incoming sensory signals from sense organs and send them to appropriate parts of the cortex for processing. And it also receive all outgoing motor signals coming from the cortex and send them to appropriate part of the body. ये एक if you ever travel in a train, so you can see the name of the junction, द स्टेशन विच इज़ नोन एज द रेलवे जंक्शन. तो जंक्शन एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा स्टेशन होता है जहाँ पे सारी ट्रेन्स आती हैं और उनको वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि किस किस डायरेक्शन में भेजना है. डायरेक्शन वहाँ पे चेंज होता है, दिस नोन एज जंक्शन. तो जो हमारा थैलेमस होता है वो एज इट इज़ वैसे ही रोल प्ले करता है. सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से, डिफरेंट ग्लैंड, डिफरेंट मसल्स से आती हैं वो यहाँ पे पहुँचती हैं थैलेमस में. थैलेमस डिसाइड करता है कि उसे फोरब्रेन के हायर पार्ट में कौन से स्पेशलाइज पार्ट में भेजना है. जैसे विजुअल इन्फॉर्मेशन है तो विजुअल पार्ट में भेजेगा, मोटर इन्फॉर्मेशन है तो मोटर पार्ट में भेजेगा, थिंकिंग के लिए भेजना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग. डिफरेंट फोरब्रेन के जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है उसके डिफरेंट पार्ट में वो उसको सेंड करता है. एज इट इज़ जैसे कॉर्टेक्स से जो इन्फॉर्मेशन आती है मोटर और ग्लैंड के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले थैलेमस में आती है. थैलेमस डिसाइड करता है कि उसे किस एप्रोप्रिएट पार्ट तक उसे सेंड करना है. ठीक है, सो ये एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है. यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइज न्यूक्लियाज होते हैं. न्यूक्लियाइज का बहुत सारा सेंटर होता है थैलेमस में. बेसिकली 3 ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं. इतना डिटेल में आपको ज़रूरत नहीं है जानने की. ओके, सो वहाँ पे ये डिसाइड करता है कि किस तरह से कहाँ पे इसको एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द बॉडी तक सेंड करना है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस. ये एक रिले स्टेशन की तरह रोल प्ले करता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन इज द लिम्बिक सिस्टम विच इज़ वेरी एंशिएंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये बहुत बहुत पहले से हमारे एंसेस्टर्स से हमें पाया गया है. हमारे एंसेस्टर्स में भी लिम्बिक सिस्टम हुआ करता था और एग्जैक्टली सेम मैनर में होता था. सो वे ऐसे ही है. बहुत सारे रैट्स पे स्टडी हुई है, उनमें लिम्बिक सिस्टम की एक्टिविटीज़ को स्टडी किया गया है. सो एनिमल्स में भी लिम्बिक सिस्टम एज इट इज़ पाया जाता है. दिस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द ओल्ड मैमलिन ब्रेन. ठीक है, ओल्ड मैमलिन ब्रेन में भी ये पार्ट्स पाए जाते हैं. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग internal homeostasis by regulating body temperature, blood pressure and blood sugar level. Basically the limbic system is play an important role to maintain homeostasis. Homeostasis, that's mean a state of body
where the all organs are work properly, and the all the blood pressure, the blood sugar level and the temperature is in a average level which is required for the body. ठीक है, एक मिनिमम लेवल पे रहता है जहाँ जितना रिक्वायर्ड है बॉडी को. दिस इज स्टेट इज नोन एज होम्योस्टैसिस. ओके, so basically it regulates body temperature, blood pressure and blood sugar level. It has close link with the hypothalamus. Besides hypothalamus, the limbic system comprise the two important part which are hippocampus and amygdala. The limbic system जो है it is a group of some parts of the brain. ठीक है, limbic system, that's why this is not a part, this is a system जहाँ पे brain के दो चार छोटे छोटे parts जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो लिम्बिक सिस्टम का दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हिप्पोकैम्पस एंड द एमंगडाला. और जो हिप्पोकैम्पस ये लिम्बिक सिस्टम होता है ये किसके साथ कोलैबोरेटिव होकर रोल प्ले करता है, किससे ज़्यादा कनेक्टेड होता है, द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से ये कनेक्टेड होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम. सो हिप्पोकैम्पस है एंड एमंगडाला. द हिप्पोकैम्पस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. हमारी जितनी भी मेमोरीज होती है स्पेशली लॉन्ग टर्म मेमोरी उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है, यहीं पे एनालाइज होती है वो, तो इससे ये रिलेटेड होता है. द एमेंगडाला प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इमोशनल बिहेवियर. एमेंगडाला जो होता है ये इमोशनल बिहेवियर के लिए रोल प्ले करता है. दैट्स मीन हिप्पोकैम्पस फॉर मेमोरी एंड एमेंगडाला फॉर इमोशन. एंड दीज टू बिहेवियर आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस. दैट्स वाई द लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिब्रम. सेरिब्रम दैट्स मीन द आउटर कवर, जिससे हमारा ब्रेन कवर्ड है. ऊपर का जो हमारा इसको हमारी जो स्कल को हटाओ तो ब्रेन का जो ऊपर की पूरी लेयर है दिस इज नोन एज सेरिब्रम. ठीक है, देयर इज अ टू टर्म, डोंट बी कंफ्यूज, द सेरिबेलम एंड द सेरिब्रम. सेरिब्रम दैट्स मीन अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन विच इज द आउटर कवर ऑफ द brain, and the cerebellum is the small brain in this is the part of the hind brain. Okay, never be confused. So cerebrum also known as cerebral cortex. cerebrum को क्या कहते हैं, cerebral cortex भी कहते हैं, the cortex. Okay, so this parts regulate all higher level of cognitive functions such as attention, perception, learning, memory, language, behavior, reasoning and problem solving. The cerebrum makes 2/3 of the total mass of the human brain. This is the largest part of the brain. ये 2/3 पोर्शन ऑफ द ब्रेन कवर करता है और उसी से एक तरह से कवर रहता है हमारा ब्रेन. द सेरिब्रम मेक्स 2/3 ऑफ द टोटल मास ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स थिकनेस वैरीज फ्रॉम 1.5 mm to 4 mm. मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है, कहीं पे 1.4 mm है, कहीं पे 5 mm है और 4 mm है, सॉरी. सो विच कवर्ड द एंटायर सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटेन्स न्यूरॉन्स एंड न्यूरल नेट्स एंड बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स. बेसिकली ये होता जो है ये वाइट जो कवर्ड पार्ट होता है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, इसमें न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, न्यूरल्स नेट्स होते हैं एंड बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं. एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन. सो ऑल दीज मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू परफॉर्म ऑर्गेनाइज action and create images, symbols, associations and memories. इसके जो डिफ़िकल्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्शन है, इसका जो सेंटर है दिस इज द क्रिएट इमेजेस, सिम्बल्स एंड associations and memories. ये सारे रोल प्ले करता है. The cerebrum is divided into two symmetrical halves called the cerebral hemisphere. जब अपने ब्रेन को हम बीच से डिवाइड करते हैं, लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. ओके, ये बीच से हम कट किए हुए हैं. आप एक वीडियो भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ, तो उस वीडियो से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. जब ब्रेन को हाफ पोर्शन में कट करें, दिस इज नोन एज वन हेमिस्फीयर. ठीक है, ब्रेन को जब यहाँ से इस पार्ट से जब हम यहाँ से कट करते हैं, सो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज सेपरेटेड, which is basically a symmetrical part. So one is known as left hemisphere and second is known as right hemisphere. This is known as hemisphere, the one part of this side and one part of this side. So this is known as hemispheres. So the cerebrum is divided into two symmetrical halves called the cerebral hemispheres. Although the two hemispheres appear identical functionally, one hemisphere usually dominated the others. ठीक है, हालांकि एकदम सिमेट्रिकल होते हैं these two hemisphere and functional according to same, but
एक इंडिविजुअल में कोई एक पार्ट ज़रूर डोमिनेंट होता है, आइदर लेफ्ट और राइट. फॉर एग्जाम्पल, द लेफ्ट हेमिस्फीयर यूजुअली कंट्रोल्स लैंग्वेज बिहेवियर and the right hemisphere is usually specialized to deal with images, spatial relationship and pattern recognition, basically the creative part. So हमारा जो यूजुअली हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, यहाँ पे इंटेलिजेंस पार्ट है, मैकेनिकल चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती हैं बेसिकली. सो इस यहाँ पे लैंग्वेज फोकस होता है. और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वहाँ की से क्रिएटिविटी, इमेजेस, स्पेशल रिलेशनशिप, पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा होता है. सो दिस टू हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ वाइड बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स. माइलिन शीट जो होती है, जो कि एक्सॉन्स को भी कवर करती है, माइलिन शीट द वाइट पोर्शन, जो हमारे एक्सॉन्स को कवर करता है. रिमेंबर द न्यूरॉन स्ट्रक्चर. ओके, सो वैसे ही वाइट फाइबर्स का एक बंडल होता है माइलिन शीट का, जो कि इन दोनों के बीच को इसको कनेक्ट करता है. ऐसे शेप में वो होता है बंडल, और वो इन दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड द राइट हेमिस्फीयर. दिस पार्ट इज नोन एज कार्पस कैलेंसम. ठीक है, कार्पस कैलेंसम नाम का एक पार्ट होता है ब्रेन में, जो कि दोनों हेमिस्फीयर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. ओके, दैट कैरीज मैसेज बैक एंड फोर्थ बिटवीन द हेमिस्फीयर. ठीक है, ये इन दोनों के कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है. सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ ऑल्सो बीन डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स. हमारे जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो ऊपर की कवर है, दिस इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. अब उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 स्ट्रक्चर पे. सो बेसिकली ये हमारा फ्रंटल लोब हुआ, दिस इज नोन एज अवर टेम्पोरल लोब, दिस इज द पैराइटल लोब एंड द बैक पोर्शन इज नोन एज occipital lobe. ठीक है, द फ्रंटल लोब, द पैराइटल लोब, द टेम्पोरल लोब एंड द occipital lobe. Okay, so cerebral cortex has also been divided into 4 lobes: the frontal lobe, the parietal lobe, temporal lobe and the occipital lobe. So the frontal lobe is mainly concerned with cognitive functioning, the intellectual functioning such as attention, thinking, memory, learning and reasoning, but it also exerts inhibitory effect on ऑटोनॉमिक एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस. ठीक है, ये इनहिबिटरी इफेक्ट करता है ऑटोनॉमिक एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस पे. दैट मीन जो फ्रंटल लोब होता है, ये बेसिकली हमारा इंटेलेक्चुअल जितनी भी फंक्शनिंग होती है, जो हायर लेवल ऑर्डर की चीज़ें होती हैं, रीजनिंग है, थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जजमेंट है, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैराइटल लोब. द पैराइटल लोब इज मेनली कंसर्न विथ cutaneous sensations and their coordination with visual and auditory sensation. ठीक है, ये एक तरह से एसोसिएशन एरिया होता है पैराइटल लोब में हमारे. ये हमारे बाकी तीनों लोब से पहली बात तो कोऑर्डिनेशन करता है. दूसरी चीज़ ये जैसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आई, जैसे ऑक्सीपिटल लोब ने हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन ली, और उसी विजुअल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ऑडिटरी सिस्टम ने कुछ ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन ली. तो इन सबको कनेक्ट करके उनकी मीनिंग डिराइव करता है. ठीक है, और जो मोटर इन्फॉर्मेशन आई फ्रंटल लोब से, तो इन सारी चीज़ों को वो कनेक्ट करता है और एक मीनिंग डिराइव करता है. एसोसिएशन एरियाज होते हैं इसमें. बेसिकली ये अलग अलग पार्ट से आए हुए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक उनमें मीनिंग देता है, उनको एसोसिएट करता है. ओके, सो ये कोऑर्डिनेशन और एसोसिएशन में रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज द टेम्पोरल लोब. Temporal lobe is primarily concerned with the processing of auditory information. Memory of symbolic sound and word resides here, and understanding of speech and writing language depends on this lobe. ठीक है, जब हम सुनते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपके ऑडिटरी सेंसेशंस आर एक्टिव. बेसिकली यू कैन रिसीव द सिग्नल, साउंड सिग्नल. ठीक है, वाइब्रेशंस आप जो रिसीव कर रहे हो, जो सिग्नल्स रिसीव कर रहे हो, इनकी जो मेमोरी होगी, इनका जो इन्फॉर्मेशन होगा, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, ये कलेक्ट हो रहा होगा हमारे टेम्पोरल लोब में. उसी के स्पेशलिटी की वजह से आप हमें सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच एंड रिटन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन दिस लोब. ठीक है, तो लैंग्वेज से भी रिलेटेड है, जितनी भी चीज़ें लैंग्वेज की जो साउंड फॉर्म में है, आप किस तरह से अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो, लिसन कर रहे हो, ऑडिटरी सिस्टम जो है हमारा वो इन्वॉल्व है. दैट्स वाई हम उसकी मीनिंग समझ पा रहे हैं. जो कैरेक्टराइज साउंड स्पीच है वो हमारी यहाँ से कंट्रोल होती है. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट लोब ऑफ द cerebral cortex is the occipital lobe. It is mainly concerned with visual information. It is believed that interpretation of visual impulses, memory of visual stimuli and color vision orientation is performed by this lobe. कलर का जो डिस्क्रिमिनेशन हम कर पा रहे हैं, ओरिएंटेशन कर पा रहे हैं, विजुअल इम्पल्सेस जो है, मेमोरी है विजुअल स्टिमुली से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहीं पे स्टोर होती हैं, यहीं पे इंटरप्रेट होती हैं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर
basically the visual system. This is the occipital lobe. That means the in cerebral cortex there are four lobes: the frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, and the occipital lobe. Frontal lobe is responsible for intellectual functioning, the cognition part, the cognition से related जितनी भी चीज़ें हैं, memory, learning, judgment, problem solving, reasoning, all the functions. And the parietal lobe, which is related to the association part, and the temporal lobe, which is responsible for auditory signal, and the occipital lobe, which is responsible for visual signals. So this is all about the brain. Physiologists and psychologists have tried to identify specific functions associated with the specific brain structure. They have found that no activity of the brain is performed only by a single part of the cortex. Normally, other parts are involved, but it is also correct that there is some localization. Normally, other parts are involved, but it is also correct that there is some localization of functions. ठीक है, दैट्स मीन एक एक्टिविटी बॉडी के ब्रेन के किसी एक पार्ट से नहीं रेगुलेट होती है, द अदर पार्ट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, बट स्टिल देयर आर सम फंक्शनल लोकलाइजेशन ऑफ दी स्ट्रक्चर. ठीक है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ज़रूर हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट आइदर द ब्रेन इज वर्क इन देयर एंटाइटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे अभी सुन रहे हो तो दैट्स मीन आप ये जो पिक्चर देख रहे हो, द विजुअल सेंसेशन इज इन्वॉल्व. ठीक है, मतलब ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व है, आप इस पिक्चर को देख रहे हो, इसकी जो फिगर है, जो स्ट्रक्चर है, उसे आप रिसीव कर पा रहे हो, इस इमेज को रिसीव कर पा रहे हो ड्यू टू योर विजुअल सेंसेशन. ठीक है, आप मुझे सुन रहे हो, दैट मीन आपको ऑडिटरी सेंसेशन इन्वॉल्व है. आप मेरी लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मेरी जो वर्डिंग है उसकी मीनिंग डिराइव कर पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब क्या कर रहा है, आज वहाँ पे लैंग्वेज स्टोर्ड है, लैंग्वेज हम किस तरह से लर्न करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आप इस लैंग्वेज के को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो. एट द सेम टाइम ये अलग अलग पार्ट के सिंगल्स को जो सिग्नल्स हैं ये एसोसिएटेड हो रहे हैं हमारे पैराइटल लोब में. दैट्स मीन द होल ब्रेन इज इन्वॉल्व इन अ सिंगल काइंड ऑफ बिहेवियर. कोई भी इसमें कोई एक पार्ट एक ही चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. अगर ऑक्सीपिटल लोब है तो नो डाउट ये विजुअल सेंसेशन के लिए है, बट सिर्फ अगर ऑक्सीपिटल लोब से होगा तो यहाँ से सिर्फ इमेज हम ले पाएंगे, उस इमेज की मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, उस इमेज से रिलेटेड साउंड को नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, उसका एसोसिएशन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ब्रेन है तो हम इसे अगर हमने इसको सिर्फ इमेज फॉर्म में लिया, ये क्या है ये हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे ना, दिस इज़ अ फिगर ऑफ ब्रेन. सो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कोरिलेट हो रहा है, तो वो हम नहीं कर पाएंगे अगर हमारा ब्रेन एक एंटाइटी में रोल नहीं प्ले करेगा. सो दिस इज द ब्रेन. अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन, part of the cortex plays a more important role than the other parts. For example, if you are driving a car, you see the road and other vehicle by the function of your occipital lobe, hear the horn by the function of your temporal lobe, okay, and do many motor activities controlled by parietal lobe, and make decision by the help of frontal lobe. The whole brain acts as a well coordinated unit in which different parts कंट्रीब्यूट देयर फंक्शंस सेपरेटली. ठीक है, सारे पार्ट्स जो हैं वो फंक्शन सेपरेटली कर पा रहे हैं, बट होल बिहेवियर, आप ड्राइविंग अ कार, मतलब एक कार आप ड्राइव कर रहे हो, इसमें कितने सारे एस्पेक्ट आपके ब्रेन के इन्वॉल्व हैं और इन सब का कितना एक्यूरेट कोऑर्डिनेशन है जिसके बेस पे आप कोई भी बिहेवियर परफॉर्म कर पा रहे हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन. In next video, we will share a video for understanding the central nervous system after doing the spinal cord. Okay, the spinal cord is remaining, which we will cover in our next video. Okay class, thank you.